Hello students, I myself Rakesh Gangwani over here welcoming you all 7th standard students in today's session. I hope you are all well and be at home and be safe. Okay? As we are been enjoying in today's time a long vacation which we have been getting after a long time, and I all know that you have been busy with playing with your friends or with your cousins or with your elder or younger brothers and sister. But now we are being in a high class, in a 7th class, and we are having ample of things to do. So daily we have been going to study different subjects with different teachers. And today we are here beginning with the English, and the first chapter which we have been going to start today, and the name of the chapter is been the tradition, which means parampara, and the writer of this chapter is Marta Salinas, which I am been writing on a board. Please pay attention. She is a French writer. Okay. Now we all have a dream. We always want to go higher. We want to achieve some big things, and sometimes we want first rank in our class, in our studies. We want highest percentages. Okay. सपने सब देखते होते हैं, लेकिन बिना मेहनत के, बिना हाथ पांव हिलाए हुए, बिना कोई दौड़ लगाए हुए रेस में फर्स्ट आ सकता है? नहीं आ सकता है. सो हियर द थिंग इज वी ऑलवेज वांट टू अचीव सम बिग थिंग्स. ओके, वी ऑलवेज सी अ बिग ड्रीम्स, and it is good. APJ Abdul Kalam have told and have been given message to a young generation: see as much as big dreams you can, so the target will be the higher, the efforts will be more higher, and the result will be at the sky. Okay, जितने बड़े सपने देखेंगे उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, और उतना ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 4 चांद लगाने वाला होगा. Okay, so here I am been starting with one small story that there was a poor farmer, and that poor farmer was having 8 children. Okay, and being a poor, he was not able to take care of each and every demands, each and every wants of that family. एक किसान था जिसकी 8 संतान थी और गरीब था वो, तो उस वजह से वो अपने बच्चों की सारी जो चीज़ों की वो मांग करते थे, उनको हर बार उसको वो पूरी कर पाता नहीं था. जिसमें से उसकी एक संतान थी, 6ठी संतान थी, वो एक लड़की थी. बचपन में ही जब वो पैदा हुई, जब वो बहुत छोटी थी, तब उस किसान ने, उस फार्मर ने ग्रैंड पेरेंट्स को, उस बच्ची के ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि उस फार्मर के माता पिता को उसने अपनी बच्ची संभालने के लिए, बड़ा करने के लिए दे दी. उस दिन से वो छोटी बच्ची जो थी वो अपने दादा दादी के पास बड़ी होती है. जैसे दादा दादी उसको बोलते, खिलाते, पिलाते, सिखाते, वैसे ही वो लड़की बड़ी होती गई. वो स्कूल में पढ़ती थी, बहुत होशियार थी, बहुत ही ज़्यादा मेहनतू थी. हर बार कुछ एक ऐसी चीज़ कर जाती थी कि जो कोई उसके जैसे कर सकता नहीं था. अब वो जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल का मैं आपको एक ट्रेडिशन बताता हूँ, एंड वो ट्रेडिशन मैं बोर्ड पे लिखूंगा, जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है. सो फॉर दैट स्टे फॉर अ व्हाइल एंड बी हियर. Yes, the topic which we have been understood and which I have been explained you up to right now, related to that one question has been there in our book in the exercise which I am been going to explain you. जितना मैंने आपको समझाया था टॉपिक, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज में, वो आ रहा है आपके सामने. लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड आंसर.
What was tradition carried out by the Texas school during the 8th grade graduation? क्या ट्रेडिशन, क्या रिवाज था टेक्सास स्कूल जो नाम है स्कूल का, वहां पर 8th ग्रेड ग्रेजुएशन के लिए? Let us understood and read the answer. The tradition carried out, जो परंपरा वहां पे थी वो ये थी, by the school, जो स्कूल हमेशा फॉलो करता था, that during the 8th grade graduation was the awarding of a very special jacket, जो 8वीं कक्षा तक रेगुलर हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस लेके आता था, उसको स्कॉलरशिप जैकेट दिया जाता था। टू द टॉप ग्रेडर, जो सबसे ऊंचा ग्रेड हासिल करता था, थ्रू आउट द 8th ग्रेड, जो 8 साल तक कड़ी से कड़ी मेहनत करता था उसको। जैकेट यूज टू बी अ ब्यूटीफुल वन, जैकेट बहुत खूबसूरत था। ग्रीन एंड गोल्डन कलर, ग्रीन कलर का जैकेट था और उसके ऊपर जो नाम लिखे जाते थे वो गोल्डन लेटर्स में लिखे जाते थे। इट हैड अ बिग गोल्डन एस, जो एस जो लिखा जाता था, जो उसका एक स्टैग मार्क था वो था एस। लेटर ऑन द लेफ्ट, वो लेफ्ट साइड था। एंड अवॉर्डीज नेम रिटन इन अ गोल्ड लेटर, और जिसके नाम का वो जैकेट था, जिसको वो दिया जाता था, उसमें उसका नाम गोल्डन लेटर से लिखा जाता था। टू इट्स पॉकेट, जो पॉकेट होता है उसके वहां पर। सो दिस वाज अ question which was been from the exercise itself, which I have been explained you right now. Moving ahead, what happened next? अब देखो ट्रेडिशन तो ये था कि मिस टेक्सास स्कूल में जो था वो 8 ग्रेड तक, मतलब 8th स्टैंडर्ड तक जो बच्चा हमेशा फर्स्ट आता था उसको अवार्ड दिया जाता था कि आपने अच्छी मेहनत की है, जिसकी वजह से आपको ये जैकेट मिल रहा है। अब आपको क्या लगता है, वो जो लड़की, जो ग्रैंड पेरेंट्स जिसको संभाल रहे थे, क्या वो लड़की को भी इच्छा हुई होगी वो स्कॉलरशिप जैकेट हासिल करने की? क्योंकि वो ऑलराउंडर थी, मेहनतू थी, कभी कोई काम से पीछे नहीं हटती थी, तो हमेशा वो भी सपने देखती थी उस चीज को पाने के लिए, तो जरूर से उसको इच्छा तो हुई होगी। लेकिन वो गरीब थी, मैंने आपको पहले भी कहा, वो सब चीजों में हिस्सा ले सकती नहीं थी। क्योंकि अगर समझो कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है उसे, तो उसे यूनिफॉर्म की फीस, जो जिस जगह पे जाना है वहां का खर्चा, वो सब पे करना होता था। तो उसे ग्रैंड पेरेंट्स अच्छे से उसको अलाउ कर सकते नहीं थे। अब नेक्स्ट पार्ट इज बीन कमिंग इन दिस चैप्टर, लेट अस एंजॉय। हुआ ऐसा कि मई का मंथ था टेक्सास में, मई मंथ इज द लास्ट मंथ, एंड उसके बाद एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद वेकेशंस हो जाती है। मई मंथ इज बीन समर टाइम, और जो लड़की है, अब मैं आपको लड़की का नाम बता देता हूँ। द गर्ल नेम इज मिस मर्था, MARTHA, मर्था, ओके। And she was an all-rounder, as we all know. She was a good ranker, good in studies, she was good in sports, and now she was being in a class, and all the students of the class was on a ground. And टेक्सास स्कूल की परंपरा ये थी कि जब आप स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड में जा रहे हैं तो आपको एक अलग से यूनिफॉर्म होती है जो आपको पहन के ही स्पोर्ट्स खेलना है, अदरवाइज आपके टीचर्स आपको अलाउ करेंगे नहीं। हुआ ऐसा कि मिस मर्था खुशी खुशी में भाग जाती है क्लास के और वो ग्राउंड पे खेलने लग जाती है। फिर उसको याद आता है कि अरे मैंने स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म तो पहनी ही नहीं है। जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ती है और जैसे ही वो क्लास में जा रही होती है तो उसको एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज 2 टीचर्स के बीच की थी। वो आवाज इसके लिए उसको रोक देती है क्योंकि वो मिस मर्था, जिस गर्ल की स्टोरी है, उसके बारे में ही कोई डिस्कशन जारी था। अब डिस्कशन ये था कि अब लास्ट टाइम है, लास्ट मंथ है, उसके बाद एग्जाम्स होंगे और एग्जाम्स के बाद अवार्ड दिया जाएगा और वो स्कॉलरशिप जैकेट का टर्न आने वाला था। अब उससे पहले ही डिसाइड हो रहा था, बिकॉज पहले से अंदाजा आ जाता है। जैसे हमारे सैम 1 में अच्छे मार्क्स आते हैं, फर्स्ट यूटी, सेकंड यूटी में अच्छे मार्क्स आते हैं, फिर सैम 2 से पहले थर्ड फोर्थ यूटी होती है, उसमें भी अच्छे मार्क्स आते हैं। तो हमें अंदाजा आ जाता है कि कौन क्लास में फर्स्ट आ सकता है, कौन सेकंड आ सकता है।
तो टीचर्स को भी एक प्रोबेबिलिटी, एक अंदाजा आ गया था कि कौन फर्स्ट आने वाला है. बट द कंडीशन वॉज लाइक दैट द डिजर्विंग कैंडिडेट वॉज नन अनदर देन मिस मराठा, जो हकीकत में उसके लायक थी. कौन किसके लायक थी? स्कॉलरशिप जैकेट के लायक थी, वो और कोई नहीं लेकिन मिस मराठा थी. लेकिन दो टीचरों के बीच में अब उस चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि मिस मराठा को अगर वो जैकेट दे दिया जाएगा तो अगर हम उसके बैकग्राउंड को, अगर हम उसके फैमिली बैकग्राउंड को, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है स्कॉलरशिप जैकेट का और उस बच्चे के फैमिली बैकग्राउंड का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना कभी कभी कहीं ना कहीं पे पार्शलिटी चलती होती है, वो हमको इस चैप्टर में कहीं ना कहीं पे दिखाई दे रही है. अब पार्शलिटी ये थी कि एक टीचर बोल रही है कि नहीं, मिस मराठा जो गर्ल है वही लायक है उस स्कॉलरशिप जैकेट के लिए, लेकिन दूसरी टीचर बोलती है नहीं, वो लायक, मैं मानती हूँ कि वो डिजर्विंग तो करती है, लेकिन अगर आप उसके कंपैरिजन दूसरी लड़की को देखें जो उसके एकदम नेक्स्ट जो डिजर्विंग करती थी, वो बहुत अमीर थी. अब यहाँ पे अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई दिखाई दे रही है, जिसमें पार्शलिटी वर्ड आ रहा है. नाउ क्या ऐसा होना चाहिए कि मिस मराठा गरीब है इसकी वजह से उसको स्कॉलरशिप जैकेट नहीं मिलना चाहिए? आई डोंट थिंक सो. I hope you also don't think so. No, for that we are being supposed to wait up to tomorrow's video. So stay on tune, and I hope you are being very much clear about today's session. Hopefully, please, if you are having any doubt when you are being going for my video on a YouTube, please give comments in the comment box and please subscribe my channel. Thank you and have a nice day.